کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو ایک جہاز ہائی جیک کرے، کروڑوں روپے لے کر آسمان سے پیراشوٹ کے ساتھ کود جائے اور پھر دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جس نے امریکہ کی تاریخ بدل دی۔ 24 نومبر 1971 کی شام امریکہ کے شہر پورٹ لینڈ کا ایئرپورٹ ہلچل میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرد ہوا رن وے سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھی اور آسمان پر بادلوں کی دبیز تہ چھائی ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں ایک شخص پرسکون قدموں سے چلا آ رہا تھا، درمیانی عمر، نفیس لباس، چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ اس نے چیک ان پر اپنا نام ڈین کوپر بتایا اور ٹکٹ خریدا، پورٹلینڈ ٹو سیاٹل، فلائٹ 305۔ محض 30 منٹ کی مختصر پرواز، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ تھا۔ وہ خاموشی سے گیٹ پر گیا، سگریٹ سلگایا، اور جب جہاز نے بورڈنگ کا اعلان کیا تو دھیرے سے اپنی سیٹ نمبر 18E پر جا بیٹھا۔ کالے سوٹ، سفید شرٹ اور سیاہ چشمے میں وہ کسی بزنس مین سے کم نہ لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، عام سا، مگر اس کے اندر چھپا راز آنے والے 50 سالوں تک دنیا کے ذہنوں کو گھماتا رہا۔ پرواز نے جیسے ہی رن وے چھوڑا، انجنوں کی آواز کے ساتھ مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ ایک عام شام کی طرح لگ رہی تھی، مگر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھا وہ شخص جانتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ پرواز عام نہیں رہے گی۔ چند منٹ بعد کوپر نے ایئروسٹس فلورنس شیفنر کو ایک نوٹ تھمایا۔ فلورنس نے مسکرا کر نوٹ لیا اور یہ سوچ کر بیگ میں رکھ دیا کہ شاید کوئی مذاق یا چھیڑ چھاڑ ہو، مگر کوپر نے آہستہ سے جھک کر کہا، مس، you'd better read that note. I have a bomb. فلورنس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے نوٹ کھولا، صاف ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، I have a bomb in my briefcase and I want you to sit beside me. وہ دھیرے سے اس کے برابر بیٹھی۔ کوپر نے بریف کیس کھولا۔ اندر کچھ سرخ سلنڈرز، تاریں اور ایک بیٹری رکھی تھی۔ سب کچھ بالکل اصلی لگ رہا تھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے 5 بجے تک $2 لاکھ چاہیے، وہ بھی $20 کے نوٹوں میں۔ 4 پیراشوٹ، 2 سامنے باندھنے کے لیے اور 2 ریزرو، اور جب جہاز لینڈ کرے تو ایندھن بھرنے کا ٹرک تیار ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا نہ جلدی، صرف ایک ناقابل شکست اعتماد۔ فلورنس نے اس کی باتیں نوٹ کیں اور کاک پٹ جا کر پائلٹ کو خبر دی۔ جیسے ہی پائلٹ نے FBI سے رابطہ کیا، پورا ایئرپورٹ الرٹ ہو گیا۔ ایئر لائن کے صدر ڈونلڈ نائروب کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ مسافروں کی جان بچانے کے لیے کوپر کے تمام مطالبات مان لیے جائیں۔ رقم بینک سے منگوائی گئی، $200,000، کل 10,000 نوٹ، ہر ایک $20 کا، اور ہر سیریل نمبر ریکارڈ کیا گیا۔ پیراشوٹ بھی تیار کر لیے گئے، مگر یہ سب جمع کرنے میں وقت لگ رہا تھا، اس لیے پائلٹ کو حکم ملا کہ جہاز سیاٹل کے اوپر چکر لگاتا رہے۔ 3 گھنٹے تک مسافر بے خبر بیٹھے رہے۔ پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز میں معمولی تکنیکی خرابی ہے اور لوگ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ان کی پرواز ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اندر کوپر سگریٹ پی رہا تھا، کبھی مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتا، کبھی آرام سے مشروب پیتا۔ اس کا انداز مہذب، شائستہ، بلکہ کسی شریف آدمی جیسا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ہائی جیکر ہے۔ وہ بات چیت میں نرمی رکھتا، فلورنس سے کہتا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد بھی تھا اور کسی گہری اداسی کی جھلک بھی۔ بالآخر شام کے 5:46 پر جہاز سیاٹل ایئرپورٹ پر اترا۔ کوپر کے کہنے پر جہاز کو مین ٹرمینل سے دور ایک ویران حصے میں روکا گیا۔ باہر FBI کے اہلکار فاصلہ رکھے کھڑے تھے۔ چند منٹ بعد ایک گاڑی آئی جس میں ایک بھرا ہوا بیگ اور 4 پیراشوٹ رکھے تھے۔ کوپر نے بیگ کھولا، رقم گنی اور اطمینان سے سر ہلایا۔ پھر اس نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مسافروں اور تقریباً پورے عملے کو جانے دیا۔ صرف ایک ایئروسٹس ٹینا مکلاؤ کو ساتھ رکھا۔ پھر اس نے پائلٹس کو کہا، ہم دوبارہ اڑان بھر رہے ہیں، منزل میکسیکو سٹی، جہاز 10,000 فٹ کی اونچائی پر رکھو، رفتار کم سے کم اور پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ پائلٹس حیران رہ گئے۔ کسی عام آدمی کو ایسی تفصیلات کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کسی ماہر ایویایشن ٹریننگ والے شخص کی باتیں لگ رہی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل، نیچے اندھیرا پھیلا ہوا۔
कूपर ने टीना को काकपट में भेजा और कहा कि दरवाजा बंद कर ले। वो अकेला रह गया, हाथ में बैग, कमर पर पैराशूट। उसने आहिस्ता से जहाज के पिछले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हवा का शोर कानों को चीर रहा था। उसने पलटकर आखिरी बार देखा, चेहरे पर वही पुरएतमाद मुस्कुराहट। फिर दरवाजा खुला, हवा के झोंके ने जहाज को हिला दिया और अगले लम्हे डीबी कॉपर आसमान के अंधेरों में गायब हो गया, अपने साथ $2 लाख, एक पैराशूट और एक ऐसा राज लेकर जो आज तक हल न हो सका। जहाज रीनो निवाडा के एयरपोर्ट पर रात गए उतरा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से भरा हुआ था। पायलट्स के चेहरों पर खौफ और हैरत दोनों थे। जैसे ही पुलिस जहाज में दाखिल हुई, अंदर हर चीज खामोश थी। पछली सीढ़ियां खुली हुई थीं, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ रहा था, मगर कूपर का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक टाई कलप, कुछ सिगरेट के टुकड़े और पैराशूट के कपड़े के चंद फटे हुए हिस्से मिले। ब्रीफकेस, पैसे, पैराशूट, सब कुछ गायब। FBI के एजेंट्स ने फौरन पूरा जहाज बंद कर दिया। फर्श से लेकर सीटों तक हर अंच पर फिंगरप्रिंट्स लिए गए। कल 66 फिंगरप्रिंट्स मिले, जिनमें से ज्यादातर किसी से मेल नहीं खा रहे थे। बाकी के मुसाफिरों और अमले के फिंगरप्रिंट्स अलग किए गए, मगर वो प्रासरार निशानात, वो सिर्फ एक ही शख्स के थे, डीबी कूपर के। मगर वो अब कहां था? क्या वो जिंदा था या किसी जंगल में सर्द रात की तारीकी में मर चुका था? अगले ही दिन अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर्स FBI रियासत वाशिंगटन की जंगलों में उतर आए। उनके पास एक अंदाजा था कि कूपर ने कहां से छलांग लगाई। साउथ वेस्टर्न वाशिंगटन के पहाड़, झीलें और घने पाइन के जंगलात। लेकिन वो अंदाजा भी महज एक गुमान था। रात 8:13 पर जब जहाज के पिछले हिस्से का प्रेशर हटा और दम ऊपर की तरफ झुक गई, वो लम्हा वही था जब कूपर कूद चुका था। लेकिन उस वक्त जहाज की सही लोकेशन, हवा की रफ्तार, बादलों की समत, कुछ भी यकीनी नहीं था। FBI ने दिन रात मेहनत की। हेलीकॉप्टर्स, घोड़े, कश्तियों, हती की एक आबदूज भी इस्तेमाल की गई ताकि झील मरून और झील येल के अंदर तलाशी ली जाए, मगर कुछ नहीं मिला। न पैसों का कोई निशान, न पैराशूट, न लाश। इब्तदा में तहकीक करने वाले अफसरों ने कहा कि कूपर जिंदा नहीं बच सकता था, क्योंकि उसने छलांग लगाई थी 10,000 फुट की बुलंदी से। तेज हुआ तूफान, बजली और अंधेरा। उसके जिस्म पर न कोई जंप सूट था, न ग्लूज, न बोट, सिर्फ एक सूट, शर्ट और लोफर जूते। इस मौसम में अगर वो किसी झील में गिरा तो चंद मिनटों में ही हाइपोथर्मिया से मर जाता। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना था कि उसके अंदाज से लगता था कि वो तजर्बाकार था, शायद कोई साबिक फौजी, शायद एयर फोर्स का पैराट्रूपर, क्योंकि उसने फौरन बता दिया था कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, सीढ़ी कैसे नीचे आएगी और रफ्तार कितनी रखी जाए। वो सब कुछ जानता था जो एक आम आदमी नहीं जान सकता। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीने बन गए। FBI ने बीनक के नोटों के तमाम सीरियल नंबर मुल्क भर में फैला दिए। हर बैंक, कैसीनो और दुकान को हिदायत दी गई कि अगर ऐसा कोई नोट किसी के हाथ लगे, फौरन रिपोर्ट करे। मगर 3 साल तक एक भी नोट नहीं मिला, जैसे कूपर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही गायब हो गया हो। मीडिया ने उसे एक लेजेंड बना दिया, द जेंटलमैन हाईजैकर, क्योंकि उसने न किसी को नुकसान पहुंचाया, न किसी पर बंदूक तानी। उसने सिर्फ अपने पैसे लिए, सबको आज़ाद किया और खामोशी से गायब हो गया। वक्त गुजरता गया और 1969 आया, यानी हाईजैकिंग के 8 साल बाद। एक दिन एक पायलट, टॉम बोहन, जिसका जहाज उस रात कूपर के जहाज के पीछे उड़ रहा था, FBI से राब्ता करता है। वो कहता है कि उस रात जो तूफान उसने देखा वो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके मुताबिक FBI का अंदाजा गलत है। कूपर उस समत में नहीं गया जहां तुम ढूंढ रहे हो, बल्कि वाशुगल रिवर के इलाके में उतरा होगा। एजेंट्स ने नोट कर लिया, मगर कोई खास उम्मीद नहीं थी, जब तक कि 1 साल बाद एक 8 साला बच्चा ब्रायन इंग्राम अपने खानदान के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे रेत में खेल रहा था। अचानक उसे मिट्टी में कुछ दबे हुए नोट नजर आए। उसने निकाला, ये $20 के पुराने फटे हुए नोट थे। कल रकम तकरीबन 5,863। बच्चे के वालिद ने फौरन पुलिस को बुलाया।
जैसे ही FBI ने सीरियल नंबर चेक किए, सबकी आंखें खुल गईं। ये वही नोट थे, डीबी कूपर के नोट। पूरा मुल्क हिल गया। टीवी, रेडियो, अखबार, सब जगह एक ही खबर, डीबी कूपर्स मनी फाउंड। अब एक नया तजस्सुस जन्म लिया। अगर पैसे यहाँ मिले हैं तो कूपर कहाँ गया? क्या वो उसी दरिया में डूबा, या किसी ने पैसे छुपाकर भागने की कोशिश की? कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि शायद कूपर जिंदा बच गया और अपनी कुछ रकम बाद में यहाँ फींक गया ताकि तफ्तीश को गमराह करे, जबकि कुछ ने कहा कि वो दरिया में बह गया। इस इलाके की बारिशें और FBI ने एक बार फिर सर्च शुरू की। कई हफ्ते लगाए गए, जदीद आलात, गोताखोर और तरबियत याफ्ता कतों के साथ, मगर फिर भी कुछ नहीं। एक बार फिर ये केस अंधेरे में डूब गया। वक्त के साथ साथ डीबी कूपर एक शख्स से बढ़कर एक अलामत बन गया, बगावत, आज़ादी और असरार की अलामत। लोग उसके बारे में गाने लिखने लगे, फिल्में बनने लगें, मुज़ाहिया शो तक उसके नाम पर हुए। लेकिन FBI के लिए ये एक जख्म था जो कभी नहीं भरा। 40 साल तक तफ्तीश जारी रही। हर नया एजेंट जब शामिल होता, उसके सामने पहला फाइल यही रखा जाता, केस 305, द डीबी कूपर हाईजैकिंग। आखिरी कोशिश 2009 में हुई, जब साइंटिस्टों ने कूपर की छोड़ी हुई टाई को दोबारा जांचने का फैसला किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उस पर छोटे ज़रात देखे। उनमें टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और एंटीमोनी के ज़रात थे। ये वो धातें थीं जो सिर्फ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती थीं। नतीजा निकला, शायद कूपर किसी ऐसी कंपनी में काम करता था जो जहाज बनाती थी, मसलन बोइंग। उससे ये भी अंदाजा हुआ कि वो आम आदमी नहीं था, वो माहिर था, प्रोफेशनल, शायद एयर फोर्स का साबिक अहलकार। कुछ लोगों ने दावी किया कि कूपर दरअसल एक आर्मी वेटरन था जिसका नाम रिचर्ड मैककोए था, क्योंकि उसने 5 महीने बाद बिल्कुल वैसा ही हाईजैक किया, इसी तर्ज पर, और पिछले दरवाजे से पैराशूट लगाकर कूद गया। मगर वो 2 दिन में पकड़ा गया। FBI ने उसको मुमकिना कूपर करार दिया, मगर सबूत नाकाफी थे। कुछ ने कहा कूपर जिंदा है, किसी दूसरे मुल्क में नई शनाख्त के साथ जी रहा है। कुछ का कहना था वो मर गया, मगर उसकी रूह आज भी शमाली अमेरिका के जंगलों में भटकती है, अपने राज की हिफाजत करती हुई। और आज 50 साल गुजरने के बाद भी वही सवाल सबके जहन में गूंजता है, क्या डीबी कूपर जिंदा बच गया, या वो सिर्फ एक लेजेंड बन गया जो आसमान से जमीन पर कभी नहीं उतरा? शायद वो कहानी कभी पूरी ना हो, मगर एक बात तय है, उस रात 24 नवंबर 1971 इंसान ने न सिर्फ कानून को बल्कि फितरत को भी चीलिंग किया, और तारीख ने उसके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया, डीबी कूपर। 50 बरस गुजर गए, लेकिन डीबी कूपर का राज अब भी आसमान के अंधेरों में दफन है। वक्त के साथ साथ ये केस एक हाईजैकिंग से बढ़कर एक अफसाना बन चुका था, एक ऐसा अफसाना जिसमें हकीकत और कहानी का फर्क मिट चुका है। FBI की तफ्तीश ने हजारों सफ़हात भर दिए, सैकड़ों लोगों से पूछ-गुछ की, मगर हर रास्ता बंद गली में खत्म होता गया। उनके पास अब भी वही चंद निशानियां थीं, एक टाई, कुछ फिंगरप्रिंट्स और वो चंद नोट जो कोलंबिया रिवर के किनारे मिले थे। मगर उन निशानियों में छुपे राज आज भी हल ना हो सके। 2006 में एक नया एजेंट लेरी कार इस केस का सरबराह बना। उसने फैसला किया कि इस मामा को नए सिरे से देखा जाए। उसने कूपर की जहानत, उसकी मंसूबा बंदी और उसके फिरार के अमल का इस सरेनो तज्जिया किया। उसके मुताबिक कूपर कोई आम मुजरिम नहीं था। वो ऐसा शख्स था जिसे एविएशन की मुकम्मल समझ थी, जिसे मालूम था कि बोइंग 737 की पछली सीढ़ी कैसे खोली जाती है, और वो रात के मौसम, हवा की समत और तूफान की नौयत को जानता था। लेरी कार का कहना था कि यह शख्स या तो एयर फोर्स का साबिक कार्गो लोडर था या किसी बड़ी एविएशन कंपनी में काम करता था, क्योंकि ऐसे ही अफराद को पैराशूट के बुनियादी उसूल सिखाए जाते थे, और ये भी बताया जाता था कि जहाज की रफ्तार, ऊंचाई और हवा की समत कैसे असर डालती है। ये थ्योरी मजीद मजबूत हुई जब कूपर की टाई पर पाए गए ज़रात का तज्जिया मुकम्मल हुआ। साइंसदानों ने उनमें खालिस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और निकल के निशान पाए, वही धातें जो इस ज़माने में सिर्फ बोइंग जैसे उदारों में इस्तेमाल होती थीं।
इससे शकूक बढ़ गए कि कूपर शायद सिएटल के करीब बोइंग प्लांट में काम करता था। वो इन जहाज़ों को अंदर से जानता था, इसलिए उसे मालूम था कि सीढ़ी कहाँ से खुलती है और जहाज़ को किन जावियों पर उड़ाया जा सकता है। अब सवाल ये था कि क्या बोइंग के किसी मुलाजिम ने अचानक गायब होकर कूपर का रूप धारा था। तहकीकात के दौरान FBI ने 800 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार की। इनमें साबिक फौजी, पायलट्स, इंजीनियर्स और हती कि कुछ मुजरिम भी शामिल थे, मगर हर बार सबूत अधूरे निकलते। फिर एक नाम आया, रिचर्ड मैककोय। ये वही शख्स था जिसने 1972 में, यानी कूपर के हाईजैक के सिर्फ 5 माह बाद, बिल्कुल वैसा ही हाईजैक किया था। उसने 4 पैराशूट मांगे, $500 मिलियन लिए और बोइंग 727 से पछली सीढ़ी खोलकर कूद गया। लेकिन वो 2 दिन बाद पकड़ा गया। FBI ने जब उसकी शनाख्त, कद, चेहरा और बातचीत के अंदाज का मुवाजना किया तो हैरत अंगेज मुमासिलत पाई गई। मगर एक बड़ी रुकावट थी। मैककोय उस वक्त यूटाह में मौजूद था जब कूपर का केस हुआ। वो एक साबिक फौजी था, मगर उसके पास इस रात के लिए पख्ता सबूत मौजूद थे। इसलिए FBI को ये तस्लीम करना पड़ा कि वो शायद नकली कॉपर था, असली नहीं। वक्त गुजरता गया और नए नाम सामने आते गए। किसी ने कहा कूपर दरअसल एक साबिक पायलट लंडन जॉनसन है जो वियतनाम से लौटने के बाद गायब हो गया। किसी ने कहा वो एक केमिकल इंजीनियर विलियम गोस्ट था जो मरने से पहले अपनी बेटी को कह गया कि मैं ही DB कूपर हूं। ये एतराफ़ उसकी बेटी ने 2001 में एक TV इंटरव्यू में किया, मगर सबूत फिर भी नाकाफी थे। एक और दावी एक औरत ने किया। मार्ला कूपर नामी खातून ने 2011 में बताया कि जब वो बच्ची थी उसने अपने चचा लन कूपर को 1971 के आसपास एक जलते हुए पैराशूट के साथ घर लौटते देखा था और उसके वालिद ने कहा, लन तुमने क्या किया, FBI तुम्हें ढूंढ लेगी। बाद में लन कूपर वाकई लापता हो गया। मार्ला के बयान पर FBI ने उसके खानदान का DNA लिया और कूपर की टाई पर पाए गए DNA से मुवाजना किया, मगर नतीजा वाज़ेह न आया। मुमकिन है मगर साबित नहीं हो सकता। एक और नजरिया भी मशहूर हुआ कि DB कूपर कभी जहाज से कूदा ही नहीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक उसने सीढ़ी नीचे जरूर की, मगर खुद जहाज के पछले हिस्से में छिप गया। जब जहाज नेवाडा में उतरा वो वहां से खफिया तौर पर निकल गया। ये नजरिया दलक्ष तो था, मगर पायलट के मशाहिदे के मुताबिक उस वक्त जहाज की दम ऊपर उठ गई थी, जो तभी मुमकिन थी जब वजन नीचे से अचानक हटा हो, यानी कोई वाकई कूदा था। फिर 1980 में मिली रकम के बाद एक और सराग मिला। कुछ गोताखोरों ने दावी किया कि इन्हें वाशुगल रिवर के करीब कपड़े के टुकड़े और जंग आलूद धात के हिस्से मिले हैं, मगर जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया तो वो पैराशूट के नहीं बल्कि आम कपड़े के निकले। एक साबिक FBI अफसर रिचर्ड टूसाव का उसका कहना था वो जिंदा नहीं बच सका, मगर उसका जिस्म कभी नहीं मिला क्योंकि दरिया का बहाव लाश को बहरहाल काहल तक ले गया होगा। मगर कुछ लोगों ने यकीन से कहा कि कूपर जिंदा है, और इस बात की सबसे बड़ी दलील वही है जो इस कहानी की जड़ में छिपी है, कूपर की होशियारी। जिस शख्स ने बगैर किसी हथियार के एक पूरा जहाज हाईजैक किया, जिसने एक लम्हे के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई, जो सिगरेट पीते हुए पुरस्कून लहजे में मुस्कुराता रहा, क्या वो इतना बेवकूफ हो सकता है कि मौसम हुआ और हालात का अंदाजा लगाए बगैर छलांग लगा दे? शायद नहीं। शायद उसने मंसूबा बहुत पहले बना रखा था। शायद किसी ने जमीन पर उसका इंतजार किया और पैसे लेकर वो रात के अंधेरों में हमेशा के लिए गायब हो गया। 2016 में FBI ने यह केस 45 साल बाद बंद कर दिया। बयान दिया गया, हमने तमाम मुमकिना सराग तलाश कर लिए हैं, मजीद तफ्तीश अब सिर्फ क़ियास आराई होगी। लेकिन दुनिया के लिए यह केस खत्म नहीं हुआ, ये तो एक पहेली बन गया। हर चंद साल बाद कोई ना कोई नया DB कूपर सामने आता है, कोई नई कहानी, कोई नया एतराफ़, मगर सच फिर भी पर्दे में रहता है। आज जब आप शमाली अमेरिका के जंगलों में सफ़र करते हैं, कभी कभी मकामी लोग अब भी कहते हैं, जब हुआ तेज चलती है और आसमान बादलों से घिर जाता है तो तुम्हें कहीं दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक हंसी जो बादलों के पार गुम हो जाती है। कहते हैं वो DB कूपर की हंसी है जो आज भी अपने राज पर मुस्कुरा रहा है। शायद वो मर गया हो, शायद वो जिंदा हो,
शायद वो किसी प्रस्कून जजीरे पर आज भी अपनी जीत की सिगरेट पी रहा हो। लेकिन एक बात यकीनी है, डीबी कूपर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक कहानी था। एक कहानी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े मामा के तौर पर जिंदा है। वो इंसान जिसने आसमान को चैलेंज किया, कानून को धोखा दिया और दुनिया को एक ऐसा सवाल दे गया जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।